Hello friends, welcome to our tutors. Now this is Drishti Bhartia. Let us we talk about April 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, CJ, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about 21st of April 2021 related current affairs. But before starting this, let us we talk about some important news headlines related to the 21st of April 2021. इसे स्टार्ट करने से पहले हम 21 अप्रैल 2021 से रिलेटेड जो है कुछ जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे. So the first important news headline of today's is The Christmas Pig, J.K. Rowling to release new children's book in October. J.K. Rowling has a new book coming this autumn, a festive children's story with all new characters. The story is about a boy named Jack and his toy, the pig, who gets missing on Christmas Eve. The book is set to be released worldwide on October 12, 2021. The Christmas Pig is Rowling's first children's novel since Harry Potter. हमें पता होना चाहिए कि J.K. Rowling द्वारा लिखी गई हैरी पॉटर के बाद जो है ये J.K. Rowling की पहली ऐसी नॉवल है जो कि बच्चों के लिए बनाई गई है. So, next important news headline of today's is about the Stefanos Tsitsipas. Stefanos Tsitsipas wins Monte Carlo 2021 title. He won his first ATP Master 1000 series after a flawless performance against Andrei Rublev in Monte Carlo. The Greek star has lost his previous two finals at this level, with Rafael Nadal denying him in Toronto and Novak Djokovic beating him in Madrid. हमें पता होना चाहिए कि स्टेफानोस सित्सिपास ने मोंटो कार्लो 2021 का खिताब जीता है. मोंटो कार्लो में आंद्रे रूबलेव के खिलाफ एक निर्दोष प्रदर्शन के बाद स्टेफानोस सित्सिपास ने अपनी पहली एटीपी मास्टर्स 1000 श्रृंखला जीती है. ग्रीक स्टार इस स्तर पर अपने पिछले 2 फाइनल हार गए थे. टोरंटो में फाइनल नडाल और मैड्रिड में नोवाक जोकोविच ने उन्हें हराया था. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है स्टेफानोस सित्सिपास. Next important news headline of today's is about the New Zealand. New Zealand makes world's first climate change law for financial firms. New Zealand is about to become the world's first country to bring a law into force that demands environmental accountability from financial firms by asking them to report on how their businesses affect climate change. The aim is to bring the financial sector on board with the efforts being made towards achieving the country's target of becoming carbon neutral by 2050. हमें पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड ने वित्तीय फर्मों के लिए बनाया है दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून. न्यूजीलैंड वित्तीय फर्मों से यह पूछते हुए कि उन्हें उनके व्यवसाय जलवायु परिवर्तन में कैसे प्रभावित करते हैं, पर्यावरणीय जवाबदेही की मांग करने वाला कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बनने वाला है. इसका उद्देश्य देश के 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों के साथ वित्तीय क्षेत्र को जोड़ना है. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कार्बन न्यूट्रल टू 2050 के लिए जो है ये लॉ बनाया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज़ अबाउट DRDO. तो हमें सबसे पहले DRDO का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. आई रिपीट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन develops a supplemental oxygen delivery system for soldiers. Defense Research and Development Organization DRDO has developed a SpO2 based supplemental oxygen delivery system for soldiers serving in extremely high altitude areas and COVID-19 पेशेंट्स. एक्सट्रीमली हाई एरिया पर क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है. तो ऐसे सैनिकों के लिए और ऐसे सैनिक जो कोविड-19 की महामारी से ग्रस्त हैं उनके लिए SpO2 बेस्ड जो है ये
यंत्र तैयार किया गया है। दिस ऑटोमेटिक सिस्टम डिलीवर्स सप्लीमेंटल ऑक्सीजन बेस्ड ऑन द SpO2 ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है SpO2 का फुल फॉर्म ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल्स एंड प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम सिंकिंग इनटू अ स्टेट ऑफ हाइपोक्सिया दैट इज लोअर ऑक्सीजन लेवल विच इज़ फेटल इन मोस्ट केसेस। हमें पता होना चाहिए कि DRDO ने विकसित की सैनिकों के लिए ऑक्सीजन वितरण प्रणाली। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेवारत सैनिकों और कोविड-19 रोगियों के लिए एक SpO2 आधारित पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है। यह स्वचालित प्रणाली SpO2 रक्त ऑक्सीजन संपत्ति स्तरों के आधार पर पूरक ऑक्सीजन वितरित करती है और व्यक्ति को हाइपोक्सिया की स्थिति में डूबने से बचाता है, जो कि ज़्यादातर मामलों में घातक होता है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। सो गाइज, नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट 21st of April 2021 related current affairs. So today's first question is, कौन सा राज्य 2021 तक लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा? Which state will launch Luna 25 mission by 2021? So answer is state मणिपुर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि लूना 25 मिशन जो है मणिपुर राज्य लॉन्च करेगा। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट मणिपुर इज इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, उत्तराखंड में किस झील के किनारे पर वाटर स्पोर्ट्स और एडवांस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवांस इंस्टीट्यूट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द लेक इन उत्तराखंड। सो आंसर इज टिहरी लेक और टिहरी झील। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है उत्तराखंड में टिहरी झील के किनारे पर वाटर स्पोर्ट्स और एडवांस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट उत्तराखंड इज देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, लॉन्च पुस्तक द क्रिसमस पिग के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक द क्रिसमस पिग? सो आंसर इज JK रॉलिंग। जैसा कि हमने पढ़ा है, JK रॉलिंग की नई बुक जो है अक्टूबर 2021 तक लॉन्च होगी, जिसका नाम द क्रिसमस पिग है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि JK रॉलिंग की फेमस बुक हैरी पॉटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, किस राज्य के 4 बार सांसद रहे बच्ची सिंह रावत का निधन हुआ है? विच स्टेट्स 4-time MP बच्ची सिंह रावत डाइड? सो आंसर इज उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है उत्तराखंड राज्य के 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP बने थे बच्ची सिंह रावत, जिनका अभी निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, आर्क्स और ARCS असिस्टेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पैनल की अध्यक्षता समिति का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द कमिटी हेडेड बाय द आर्क्स और एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? सो आंसर इज सुदर्शन सेन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि सुदर्शन सेन जी को एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो है निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, किस बैंक ने भारत में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने की घोषणा की है? विच बैंक अनाउंस द क्लोजर ऑफ इट्स कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया? सो आंसर इज सिटी बैंक। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, पोइला बोईशाख किस राज्य द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि पोइला बोईशाख is a festival celebrated by which state? So answer is पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट बंगाल इज कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 वॉज हेल्ड? सो आंसर इज अमेरिका। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि अमेरिका में हॉस्टन जगह पर वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, झिली डाला बेहड़ा एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल वॉन इन झिली दालबेहड़ा एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स 2021? सो आंसर इज गोल्ड मेडल और स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है डाला बेहड़ा ने जो है स्वर्ण पदक जीता है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज, स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर 1.8 किलोग्राम वजनी हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रचा है। सो विच स्पेस एजेंसी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय फ्लाइंग अ 1.8 kg हेलीकॉप्टर ऑन मार्स? सो आंसर इज नासा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है
नासा ने जो है 1.8 kg का हेलीकॉप्टर मार्स की तरफ फ्लाई किया है और इन्होंने जो है एक नया इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अल्ट्रा वाइड पेंट विकसित किया है? रिसर्चर्स फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डेवलप्ड अल्ट्रा वाइड पेंट? सो आंसर इज पर्ड्यू विश्वविद्यालय और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, पर्ड्यू यूनिवर्सिटीज डेवलप एन अल्ट्रा वाइड पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम 2021 आयोजित किया है? विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द जेंडर डायलॉग प्रोग्राम 2021? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद 2021 कार्यक्रम जो है आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ्को और IFFCO ने किस राज्य में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? इन विच स्टेट इफ्को अनाउंस्ड टू सेट अप एन ऑक्सीजन प्लांट? सो आंसर इज स्टेट गुजरात। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, इफ्को ने गुजरात में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जो है घोषणा की है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट गुजरात इज गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज वियतनाम देश के विदेश मंत्री कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु बिकेम द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ द कंट्री वियतनाम? सो आंसर इज बुई थान सोन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, बू थान सोन बिकेम द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ द वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज सुमित्रा भावे का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थी? सुमित्रा भावे हैज डाइड एट द एज ऑफ 78. व्हाट वाज शी वाज फेमस? सो शी वाज फेमस मराठी डायरेक्टरी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि वह एक प्रसिद्ध मराठी निर्देशिका थी सुमित्रा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज किस शहर में स्थित DEBEL ने SpO2 ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम विकसित किया है? इन विच सिटी डेवल डेवलप्ड SpO2 ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम? सो आंसर इज सिटी बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में जो है डेबल ने SpO2 सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम जो है बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च की है? वो लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। सो आंसर इज पीयूष गोयल। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, पीयूष गोयल जी ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज नरेंद्र कोल का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है, वह किसके वरिष्ठ अधिकारी थे? सो नरेंद्र कोल हैज डाइड ड्यू टू कोविड-19. Whose senior officer was he? So he was an officer of Indian Information Service और IIS भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नरेंद्र कौल जी का निधन हुआ है कोरोना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज रेलवे ने कोविड-19 केयर कम आइसोलेशन सुविधा के लिए कितने ट्रेनों को परिवर्तित किया है? रेलवे हैज़ कन्वर्टेड हाउ मेनी ट्रेन्स टू कोविड-19 केयर कम आइसोलेशन फैसिलिटी? सो आंसर इज 4002 4002 ट्रेनों को जो है भारतीय रेलवे ने केयर कम आइसोलेशन सुविधा कोविड-19 के लिए आइसोलेशन के लिए ट्रेनों को परिवर्तित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज डिजिटल भुगतान संभालने के लिए LIC ने किसके साथ समझौता किया है? विथ whom LIC टाइड अप टू हैंडल डिजिटल पेमेंट्स? सो आंसर इज पेटीएम। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अलॉन्ग विथ पेटीएम टाइड अप टू हैंडल डिजिटल पेमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज गंजम वेंकट सुबैया का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? गंजम वेंकट सुबैया हैज डाइड. व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस राइटर, वह एक प्रसिद्ध लेखक थे गंजम वेंकट सुबैया, उनका हाल ही में निधन हुआ है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट प्लेस इंडिया रैंक्ड इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021? सो आंसर इज 84th। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, 84th स्थान पर जो है भारत रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज टाटा कंज्यूमर प्रोजेक्ट ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? हु वॉज अपॉइंटेड बाय टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एज इट्स प्रेसिडेंट?
सो आंसर इज दीपिका भान। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है दीपिका भान को टाटा कंज्यूमर प्रोजेक्ट का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा को रद्द किया है? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर कैंसल्ड हिज विजिट टू इंडिया? सो आंसर इज ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जो है अपनी भारत यात्रा को रद्द किया है ड्यू टू कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज IAF चीफ RKS भदौरिया किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? IAF चीफ RKS भदौरिया वेंट ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री? सो आंसर इज फ्रांस। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है एंड कैपिटल ऑफ फ्रांस इज न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज जस्ट डायल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू ब्रांड मैनेजर ऑफ जस्ट डायल कंपनी? सो आंसर इज रणवीर सिंह। फेमस एक्टर रणवीर सिंह बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जस्ट डायल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज अबाउट द PM। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लागू करने वाले जम्मू कश्मीर का पहला जिला कौन सा बना है? विच बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर JNK टू इम्प्लीमेंट द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना? सो आंसर इज उधमपुर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है उधमपुर बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK टू इम्प्लीमेंट द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एंड कैपिटल ऑफ स्टेट JNK इज श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज लॉन्च्ड पुस्तक इंडियाज पावर एलाइड कास्ट एंड अ कल्चर रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक इंडियाज पावर एलाइड कास्ट एंड अ कल्चरल रिवॉल्यूशन? सो आंसर इज संजय बारू। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है लॉन्च्ड पुस्तक इंडियाज पावर एलाइड कास्ट एंड अ कल्चरल रिवॉल्यूशन के लेखक संजय बारू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021? सो आंसर इज कजाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है और कजाकिस्तान ने 7 मेडल भी जीते हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के नए चेयरमैन एवं प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? Who became the new chairman and managing director MD of Small Industries Development Bank और SIDBI? I repeat, SIDBI का फुल फॉर्म हमें याद रखना है Small Industries Development Bank और लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI। सो आंसर इज शिव सुब्रमण्यम रमन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है शिव सुब्रमण्यम रमन बिकम द न्यू चेयरमैन MD ऑफ SIDBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया गया? When was National Lok Day celebrated? So answer is 21st of April. Important है, हमें याद रखना है National Lok Day is celebrated on 21st of April. Next question number 32 is केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के समय में राज्य कितना आपदा प्रतिक्रिया कोष उपयोग करने की अनुमति दे रहा है? How much disaster response fund the state allowed to use during the time of कोविड एंड एपिडेमिक? सो आंसर इज 50%। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है राज्य कोष का 50% जो है हर एक राज्य यूज़ कर सकता है कोरोना महामारी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज भारतीय नौसेना ने स्वदेशी निर्मित ALH MK3 और INAS 323 को किस राज्य में कमीशन किया है? इंडियन नेवी कमीशनड इंडिजीनियसली बिल्ट ALH MK3 and INAS 323 in which state? So answer is गोवा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है गोवा में भारतीय नौसेना ने स्वदेशी निर्मित ALH MK3 और INAS 323 को जो है कमीशन किया है एंड कैपिटल ऑफ स्टेट गोवा इज पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज किस देश ने कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? विच कंट्री वॉन द कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट? सो आंसर इज कंट्री स्पेन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है स्पेन वॉन द कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज अहमद हुसैन जी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? अहमद हुसैन हैज़ डाइड इन विच स्पोर्ट ही वॉज रिलेटेड? सो आंसर इज फुटबॉल। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है फुटबॉल खिलाड़ी अहमद हुसैन जी का हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज किसने रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन रामायण?
सो आंसर इज प्रहलाद सिंह पटेल। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज किस राज्य में वर्ष 2022 तक हर घर जल लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? इन विच स्टेट अनाउंस टू अचीव हर घर जल टारगेट बाय द ईयर 2022? सो आंसर इज स्टेट पंजाब। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। पंजाब राज्य ने हर घर जल लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है 2022 तक। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट पंजाब इज चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज मॉन्टे कार्लो में आयोजित किसने पहली एटीपी मास्टर्स 1000 श्रृंखला जीती है? Who won the first ATP Master 1000 series held in Monte Carlo? So answer is Stefanos Tsitsipas। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, ATP Master 1000 सीरीज जो है जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं स्टेफानोस सित्सिपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इज हर्नले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? विच कंट्री टॉप द हर्नले पासपोर्ट इंडेक्स 2021? सो आंसर इज जापान। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट कंट्री जापान इज टोक्यो। हमें पता होना चाहिए कि हर्नले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर जापान रहा है और भारत जो है 84th प्लेस पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इज यूएन चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? When was UN Chinese Language Day was celebrated? So answer is 20th of April। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। 20 अप्रैल को UN चीनी भाषा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 इज किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट? सो आंसर इज छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट जो है लागू किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट छत्तीसगढ़ इज रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। केंद्र सरकार ने कब से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की घोषणा की है? When did the central government announces the introduction of COVID-19 vaccine to all people above the age of 18 years? So answer is 1st of May 2021। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। 1 मई 2021 के बाद से जितने भी लोग 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं उन सभी को कोरोना वायरस के लिए कोविड-19 वैक्सीन लगाने की घोषणा की गई है, जो कि अनिवार्य है। सो गाइस, आई होप आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने बारी बारी से डिस्कस कर लिए हैं। सो आप इन्हें लिखिए, याद करिए, क्योंकि एग्जाम्स जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, होंगी ज़रूर। सो स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। सो गाइस, आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।